Hello guys, good morning to all of you. Welcome to TET Buzzer. This is Anamika here. So guys, today we will discuss about our paper CTET ਦਾ paper जो कि January 2011 ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2011 ਦਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2012 ਦਾ ਪੇਪਰ January 2012 ठीक है जी if you have any queries guys you may call on this number ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ if you have any queries ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 91 to 105 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 120 ਆਏਗਾ ਬਈ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ठीक है जी तो डिस्कस करते हैं सब तो पहला क्वेश्चन है टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर इज प्राइमली मेंट फॉर इंप्रूविंग देयर किस चीज ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਣਾ ਟੈਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ है ना बच्चे ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਰਾਈਟ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੇਅਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ sensitize young learners to rhythm and intonation ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਦਮ ਲੈ ਤੇ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਟੋਨ ਜਾਂ ਪਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਤੇ ਟੋਨ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਮਸ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ है ना ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ B is the right answer by making the learner listen to nursery rhymes and recite ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਤੇ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ them effectively ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਦਮ ਤੇ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਤਾਂ B ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਟੋਨ ਉਸੇ ਲੈ ਉਸੇ ਪਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਦਮ ਤੇ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਈ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ will make children learn all the answers to the questions ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣ will use the textbook as the other material as a resource for teaching ਟੀਚਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ will prepare question paper using only question given the textbook will really entirely on the prescribed textbook ਅਰੇ ਬਾਈ ਟੈਕਸਟਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰੇਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੀ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਬਈ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स लर्नर इज the most effective tool to assess value ਤੇ attitude ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਸਮੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ ਬੁਕਿਸ਼ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ
एंड उन्होंने वैल्यूज आप पोर्टफोलियो तो चेक करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर एंगेजेस हर लर्नर इन अ फन एक्टिविटी बिफोर बिगिनिंग अ न्यू लेसन। नवा लेसन स्टार्ट तो पहला टीचर की करता है, बच्चों को एंगेज करता है, बिजी रखता है फन एक्टिविटी विच। ठीक है जी। दिस पर्पस ऑफ एक्टिविटी इज टू किदे लिए की जाती है भी एक्टिविटी ताकि बच्चे डिसिप्लिन च रहन। आप डांट के भी डिसिप्लिन करा लेने है ना भी। डाइवर्ट द अटेंशन टू द लर्नर, अटेंशन दी जड़ी लर्नर दी जड़ी अटेंशन हो डाइवर्ट कर दो, उन्होंने मोटिवेट कर दो बई ताकि वो एनर्जाइज हो जान अगे लैसन रीड करने दे लिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ओरल ड्रिल। ओरल ड्रिल दा मेन पर्पस की है, क्यों अपन ओरल ड्रिल करवाई जाती है, ओरल प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है? हाँ जी, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव स्किल अपनी हो सके, ताकि आप असेस कर सकिए, इवेल्युएट करना, टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी, एनहांस स्पीकिंग स्किल ऑफ लर्नर, टू इंप्रूव द रेसिटेशन कैपेसिटी ऑफ द लर्नर। कैपेसिटी आपा की करनी है तो गल है भी इंप्रूवमेंट दी, ताकि बच्चे दी प्रोनाउंसिएशन ते उन्हां दी एक्यूरेसी ते इंप्रूवमेंट हो सके। तो बी जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है भी इधर। नेक्स्ट आप गल करते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुड बी अडॉप्टेड बाय ऑल स्कूल्स बिकॉज CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इट मींस बच्चे दी ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है। कहंदे अडॉप्ट किया गया बिकॉज क्यों किया गया, क्योंकि पहला इदा दा मैथड है ही नहीं सी। पहला की सी ट्रेडिशनल मैथड कराया जाता सी, पेन पेपर टेस्ट, डू नॉट एसेस और एनहांस ऑल एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स। बच्चे दी को स्कोलास्टिक नूं तां देखिया ही नहीं जाता सी पहला, इस करके CCE चलाया गया ताकि बच्चे दी की हो सके ऑल राउंड डेवलपमेंट। राइट। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं भाई, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। एक बंदे नूं एक भाषा तो वध भाषावां दे बारे नॉलेज होना, इट मींस बिकम अ बर्डन ऑफ अ टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम, कंफ्यूज द लर्नर बाय लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, इज अ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। बिल्कुल सही है भी, अपनी हेल्प कर दी है। ठीक है ना। अगर मैनू तुहाडी मदर टंग पता है, मैं तुहानू कन्नड़ भी सिखानी है या मलयालम भी सिखानी है ना, तो मैं सिखा सकती हूँ। किवें सिखा सकती हूँ, उसे चीज़ों नू तुहाडी मदर टंग च ट्रांसलेट करके, तो आपां नू हेल्प करदी है। नेक्स्ट देखो भाई, सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लैक्सीबल सो दैट, सीटिंग अरेंजमेंट जो है हमेशा फ्लैक्सीबल होना चाहिए बच्चों के लिए। क्यों होना चाहिए? सेटिंग अरेंजमेंट सॉरी, हाँ जी। चिल्ड्रन डू नॉट फॉर्म परमानेंट फ्रेंडशिप, कहते परमानेंट एक ही बच्चे नाल फ्रेंडशिप ना कर ले, तां करके आपां क्यों करदे हां, वख-वख बच्चों नाल आपां अरेंज कर दिंदे हां ताकि मैनी ग्रुप्स पेयर होल क्लास एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड ईजीली। वख-वख बच्चों नूं हमेशा नवां-नवां काम देना, जो आपां एक एक्टिविटी एक बच्चे नाल करा ली तो दूजी एक्टिविटी आपां की करदे हो, बच्चों नूं चेंज कर दिंदे हां ताकि वख-वख तरीके नाल उन्हां दी नॉलेज नूं की है गेन होवे, नॉलेज उन्हां दी नॉलेज वाधा होवे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आप गल करते हैं करिकुलम की। करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट, की चीज नहीं करती। हाँ जी, करिकुलम की नहीं डिपेंड करती भाई, नंबर ऑफ लेसन टू बी टॉट इन द टर्म। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ लेसन क्यों करूगी भाई वो करिकुलम दे विच, वो तो ये आएगा भी आ चैप्टर्स है, इन्हू किन्ना किस तरीके नाल पढ़ाया, किहड़े मटीरियल नाल पढ़ाया, की पर्पस है तुहाडी उस चीज नू पढ़ाउण दा, ये सारे तो सही ने। तो ए जो है बिल्कुल गलत है, तो ए अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ राइटिंग। राइटिंग प्रोसेस के लिए सब तो
इंपॉर्टेंट स्टेज केड़ी है? Which of the following is an important stage in the writing process? Yes. So what is the important stage of writing? This was editing. We have already done केड़ी stages होंदियां writing दियां ते केड़ी stages होंदियां discovery लिख सकते हो या कह सकते हो प्री राइटिंग ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ठीक है जी तो एडिटिंग की है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नेक्स्ट है जी अ साइट वर्ड इज अ वोकैबुलरी आइटम साइट वर्ड इज अ वोकैबुलरी आइटम की होएगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ एक वोकैबुलरी शब्द है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी विजुअल अंडरस्टैंडिंग नो लर्न बाय हार्ट नो इट हेल्प जजिंग नो दैट द रीडर रिकॉग्नाइज करेगा शब्दां नू ते इहदे मतलब नू समझण दी कोशिश करेगा विदाउट कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस डी इज द राइट आंसर हाँ जी स्किनिंग स्किमिंग स्कैनिंग स्कैनिंग मींस डर्टिंग ओवर मच ऑफ द टेक्स्ट टू सर्च ओ फॉर किस चीज नू सर्च करने दे लिए आपां स्कैनिंग करदे हां हाँ जी स्कैनिंग किस लिए करते हैं ताकि आप स्पेसिफिक आइटम नु या इंफॉर्मेशन नु डिस्कवर कर सके या उस चीज नु रीड आउट कर सके तो स्कैनिंग की है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਜਾ ताकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ठीक है स्पेसिफिक आइटम्स नु पढ़न दे ਲਈ नेक्स्ट देखो जी we use real object to teach young learners new words because क्यों ਆਪਾਂ रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं बच्चों को ताकि नवे नवे शब्द सीख सकन क्यों क्योंकि जदों भी आप किसी चीज को रियल लाइफ सिचुएशन नाल ऐड करते हैं या रियल चीज़ों नाल ऐड करने हैं तो वो लर्निंग केड़ी हो जाती है अपनी परमानेंट लर्निंग हो जाती है तो की आंसर आएगा भी इधर इट हेल्प लर्नर एसोसिएट वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट दे सी इन द रियल लाइफ ऑब्वियसली जिहड़ी चीज नूं आपां रियल लाइफ च देख लैंदे आ वो चीज़ां नूं आपां इंप्रैशन हुंदा कदे नहीं भुलदे A good introduction to a text should be किदां दा होना चाहिए है भाई इंट्रोडक्शन टेक्स्ट इंट्रोडक्शन मतलब जो चीज आप करन जा रहे हैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा या लिखा होना चाहिए ना telling the student anything that can find out for themselves by reading the text no detailed explanation meaning of the text no blocking students active involvement no तक शॉर्ट एंड टू द पॉइंट एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए जिदे करके अपन पता चल जाए तो इस चैप्टर दे विच होर है की तो इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट नेक्स्ट अपना जिहड़ा स्टैंजा है अपन उहनूं देखदे हां तो स्टैंजा किहड़ा है भाई नाइट द सन डिसेंडिंग द वेस्ट द इवनिंग स्टार डज शाइन द बर्ड्स आर साइलेंट इन द नेस्ट एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन the moon like a flower in the heavens I bore with a silent delight sit and smile on the night farewell green fields and happy groves where flocks are took delight where lambs have nibbled silent moves the feet angels bright sometime ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मीनिंग सर्च ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ नो just read out the 3-4 lines maximum and after that you should read the question first the evening star rise when ਕਦੋਂ rise ਹੁੰਦਾ evening star ਹੁਣ ਪੈਰੇ ਚ ਆ ਜਾਓ
द इवनिंग स्टार डज राइज कदों होएगा भाई? द सन डिकेट्स इन द वेस्ट, जो सन वेस्ट वाल मूव हो जाएगा, मतलब घटदा जाएगा उस वेले, ठीक है ना, उदो ही सन शाइन होएगा, स्टार राइज होंगे, सॉरी, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हेयर बोअर रिप्रेजेंट, बोअर की सी इधर आ देखो, बोअर हाई बोअर इन द हेवन, इट्स हाई बोअर विद साइलेंट डिलाइट सिट एंड स्माइल। तो बोअर दा मतलब की है फ्लावर वास, पोटेड प्लांट, फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट क्लाइंबिंग प्लांट्स, या बुके ऑफ फ्लावर्स। इथे की कह रहे हैं? लाइक अ फ्लावर। ते फ्लावर्स की गल कर रहे हैं भाई, फ्लावर वास की गल कर रहे हैं। बोअर की है जेड़ा कि फ्लावर नू रखदा है, एक वास। द पोइट कंपेयर्स मून टू, हुण आपां देखदे हां पोइट ने मून नू किहदे नाल कंपेयर कीता है? On the each bud and blossoms, each living blossom, they look very thoughtfulness nest where the birds are covered warm. The visit अरे द मून लाइक अ फ्लावर इन द हेवन, है ना। तो किदे नाल कंपेयर किया भाई मून नू? एज अ फ्लावर। द मून लाइक अ फ्लावर, आ देखो, द फ्लावर नाल कंपेयर किया, राइट। नेक्स्ट, द एंजल्स कम डाउन ऑन अर्थ टू, एंजल्स कम डाउन ऑन अर्थ किदे लई? Where flocks and delight, where lambs are nibbles at the feet of the angels bright. नाइट दे सीन नू क्रिएट किया, तो एंजल्स किस लिए आउंदियां ने भाई? गिव ब्लैसिंग्स एंड जॉय, आपां नू ब्लैसिंग ते जॉय देन लई, खुशी देन लई, ठीक है जी। Are at the feet of angels bright because unseen they are pure blessing and joy without ceasing, ਆਪਾਂ ਨੂੰ blessing ਤੇ joy ਦਿੰਦੇ ਆ without ceasing। next है जी bird's nest, bird nest is described as thoughtless because क्यों आ रहा? they look in every thoughtless nest on the each bud and blossoms and each sleeping blossom, they look very ठीक है। we covered all the worms, they visit caves in the west wheat, the occupants are sleep without any care। next is the figure of speech which used in the line in heaven's high bower, एक ही है एक in heaven's high bower, एक ही एक सिमिली है, एक मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, या एलिट्रेशन है। these are the literary terms। तो इत्थे की हो रहा इन द हेवन, ए मेटाफर है, कंपेयर किया गया डायरेक्टली, तो कंपेयर किया गया भाई डायरेक्टली, सो दिस इज मेटाफर। नेक्स्ट स्टैंजा फिर आ गया भाई वो पोएम दा सी। हुन नेक्स्ट अपना पैसेज है, आवर बॉडी इज अ वंडरस mechanisms and when subjected to the unusual stress over a period of time it adapts itself a deal for the effective with that stress, therefore when you are exert your muscles against resistance
they are forced to adapt and deal with this extraordinary workload। 3 नंबर ਆਪਾਂ देखते हैं भी क्वेश्चंस की अराइज किए गए ने। तो क्वेश्चन नंबर 112 है जी, द प्रिंसिपल ऑफ वेट ट्रेनिंग इज, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेट ट्रेनिंग केड़ी, they are forced to adapt and deal with this extraordinary workload, है ना। हाँ, इंक्रीज जो आप स्ट्रेस ਨੂੰ इंक्रीज कर ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ अपना वेट ट्रेनिंग ਜਿਹੜਾ सिद्धांत है वो बनता है। डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। वेट ट्रेनिंग मेक्स द मसल्स, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸਲਸ ਤੇ ਦੇਖਿਓ वेट ट्रेनिंग आ देखो स्टैंड्स ऑफ मसल फाइबर बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर इन द रिस्पॉन्स and the demand space placed on them, the strength of your heart during the weight training, your heart is forced to beat faster and strong in the order to pump sufficient blood in the muscles of breaking walk। तक की आएगा भाई। हाँ जी, वेट ट्रेनिंग मसल्स की हो जाती है थिक एंड स्ट्रॉन्गर। उन्हें रीड किया सी, देख लो, बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग द हार्ट पंप्स की हो जाता, उन्हें रीड किया सी आपां, हार्ट पंप्स, योर हार्ट इज फोर्स टू बीट फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर order to pump sufficient blood to muscle being worked। क्या आएगा, extraordinary amount of blood, more blood, extraordinary amount of blood, less blood, sufficient नहीं रहता अपना वो blood। we will definitely discuss about this question again later on। a stronger or more effective heart, efficient heart कितना दा होएगा, हाँ जी, stronger and more, इत्थे देखते हैं effective, ठीक है जी। तो की होएगा, योर हार्ट विल नाउ नीड फ्यूअर बीट टू पंप, है ना, घट पंप करेगा जो स्ट्रोंग और मोर एफिशिएंट हार्ट नीड्स फ्यूअर बीट टू पंप द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड। रिक्वायर्ड ब्लड, 14 दा सही है क्वेश्चन दा आंसर देखो भाई। वेट ट्रेनिंग मेक्स द मसल्स, सॉरी, यूजिंग वेट ट्रेनिंग द हार्ट पंप की चाहिए है रिक्वायर्ड ब्लड, सिर्फ मैंने पूछा ही है कि की चाहिए उन्होंने, रिक्वायर्ड ब्लड रिक्वायर है ना उन्होंने, क्वेश्चन आ सी। नेक्स्ट देखो, स्ट्रोंगर एंड मोर एफिशिएंट हार्ट किदा दा होएगा, तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई। व्हेन न्यूट्रल पाथ बिकम मोर इफेक्टिव, उन्हें पता देखा सी न्यूट्रल पाथ, इवन द न्यूट्रल पाथ फ्रॉम ब्रेन कमांड सेंटर्स टू ईच इंडिविजुअल मसल्स बिकम मोर इफेक्टिव, की आएगा भाई,
fiber carrying physical attack can enhance your body become well oiled. Your entire circulatory system is given through the workout every time you exercise, which increase overall efficiency, even the neutral path. Okay. तो क्या आएगा भाई, जब द ब्रेन एम्प्लॉय वेरियस मसल्स इजीली टू फिजिकल टास्क. व्हाट डज द टर्म वेल ऑयल्ड, वेल ऑयल्ड उन्हें पढ़िया सी, जिंदा मतलब की है दिस इज वेल ऑयल्ड. वेल ऑयल्ड का मतलब की है भाई इधर सर्वाइज्ड, मसाज्ड, ग्रीस्ड या हेल्दी. तो वेल ऑयल्ड मतलब है कि जिन्ना तुसी सही तरह नाल ऑयल खाओगे दिस इज हेल्दी फॉर यू. डी आएगा. वेल ऑयल्ड की करदा है मतलब हेल्दी. ऐदा मतलब ये नहीं है कि मतलब ऑयल उन्ना ही लो जिन्ना की नीड है. ਆਪਾਂ ज्यादा ऑयली चीजा खाने खराब हो जाने, अपनी मसल्स खराब होंगे, अपन फैट चढ़दा है, राइट. Which one of the following is the most appropriate title for the passage? हाँ जी, किदां दा टाइटल सुटेबल है इस पैसेज दे लई. पहला ही लिखा होया ने, फर्स्ट लाइन सी मैकेनिज्म ऑफ वेट ट्रेनिंग. हेल्थ इज वेल्थ नहीं आएगा, ठीक है जी. हाउ टू रिटेन योर हेल्थ भी नहीं आएगा. स्ट्रेस बस्टिंग भी नहीं है क्योंकि हेल्थ ट्रेनिंग है. द मैकेनिक्स ऑफ वेट ट्रेनिंग. This is very suitable for this title. What does the above passage suggests? की suggest करदा है अपन नू? हाँ जी, तो की suggest करदा भी अपन नू? अगर तुसी अपनी स्ट्रेस नू घटाना चाहते हो, अपनी सेहत नू सही रखना चाहते हो, तो डेली बेसिस ते तुसी की करना है, एक्सरसाइज वगैरह करनियां ने, ठीक है जी. तो की कह रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी ओकेजनली. ओकेजनली नहीं आएगा भाई, रूटीन आएगा. इग्नोर फिजिकल एक्सरसाइज, वी शुड सब्जेक्ट आवर बॉडी टू मच एक्सरसाइज एज इट. वी शुड कैरी आउट द फिजिकल एक्सरसाइज एज अ रूटीन. अपना रूटीन बनाना चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज दे विच. लास्ट क्वेश्चन है भी आज दा. द वर्ड वॉन्ड्रस फर्स्ट लाइन दे विच है, कहना मतलब की है. दिस इज वॉन्ड्रस. ਇਹਦਾ मतलब की बनता है कि है, मतलब एक नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या वर्ब है. नाउन तो है नहीं, आवर बॉडी इज नाउन. मैकेनिक वंडर्स मतलब एडजेक्टिव ओदी विशेषता दसी गई है, तो दिस इज एडजेक्टिव. दिस इज एन एडजेक्टिव. तो ये सी गाइस अपने पेपर जो कि 2011 का पेपर है, 26 जैन 2011, जिदा आप इंग्लिश का सारा पोर्शन सॉल्व किया है. आई होप कि तुम सबको समझ आ गया होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर. फिर मिलांगे नेक्स्ट पेपर दे लई, ठीक है जी. इंडिपेंडेंट सीरीज है, तो जिन्हों दे भी जो भी पेपर देन जा रहे हैं सीटेट दे, पीटेट दे, तो उन्होंने लई बहुत बेनिफिट है. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.